Hello everyone, we are going to start with a new chapter, that is reproduction in organism. This chapter is taken from class 12th science and it is also important with respect to NEET. We are also going to solve some previous year NEET question at the end of this topic. So let's get started. If I talk about the introductory part of this chapter, 2 points are important here. One is lifespan and the other one is clone. So lifespan is nothing but the period starting from your birth till the end of your life is called to be the lifespan. So if I talk about different species, doesn't matter, like अगर हम लोग साइज की बात कर रहे हैं या शेप की बात कर रहे हैं, तो स्पीशीज जो है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो है, उनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर उनका साइज अलग है या शेप अलग है तो उनका लाइफ स्पैन भी अलग होगा। जैसे अगर एक इंसान मोटा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका जो डेथ फेस है वो बहुत लेट आएगा या बहुत जल्दी आ जाएगा। सो देर इज नो रिलेशन ऑफ डेथ फेस विथ रिस्पेक्ट टू द शेप एंड साइज। सो अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, डजेंट मैटर, द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू हैव अ डेथ फेज इन हिज लाइफ. So these are some important features with respect to lifespan. Now we'll talk about clone. क्लोन का मतलब होता है जेरोक्स कॉपी। जैसे एक अगर सेल है उसके बहुत सारे सिमिलर स्ट्रक्चर्स, वैसे ही सेम सेल अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। जैसे कि वो जो सारे सेल्स होंगे दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। कहने का मतलब ये है कि वो जो जितने भी सेल्स हम लोग ने प्रोड्यूस किए हैं दे ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. So this was all about the introductory part. These are some approximate lifespans of different species. You can go and read about this organisms. Reproduction का part हम लोग already basics में cover कर चुके हैं, so I am not going to repeat those things. If you want to learn about the basics, you can go and watch those videos. So let us start with asexual reproduction. Basically when I talk about asexual reproduction, there is always involvement of one single parent, and therefore if this is the parent, the offspring that is going to be produced by this cell is always identical to the parent cell. So the parent cell and the offspring both are identical to each other. These are some types of asexual reproduction. We are going to see all the types one by one. So let us start with fission. Fission is divided into further two types, that is binary fission and multiple fission. When I talk about binary fission, the examples are amoeba and paramecium. So amoeba and paramecium are unicellular organism, and when the amoeba or paramecium is going to divide, they are going to divide into two identical daughter cells. So they are going to divide with the help of pseudopodia. So this type of region that is produced, that is called pseudopodia, and there is equal division of cytoplasm and nucleus as it is shown in the picture. So these two daughter cells are completely identical to each other in both the cases. If I talk about multiple fission, the name suggests itself that at a time more than two daughter cells are produced as compared to the binary fission. So binary fission में सिर्फ दो daughter cells produce हो रहे हैं at a time, जो कि दोनों identical है each other से। और जब मैं मल्टीपल फिजन की बात कर रही हूँ तो एक साथ बहुत सारे डॉटर सेल्स एट अ टाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसी के कारण इसका नाम मल्टीपल फिजन दिया हुआ है. सो द एग्जाम्पल फॉर दिस इज plasmodium. Plasmodium is a protozoa, and this is going to form at a time more than two daughter cells. So if I talk about this, ये एक सेल है, सेल के बाहर पर एक लेयर बन जाती है जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं, यानी कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट. इनसाइड दिस सिस्ट द सेल्स आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड. जब ये सिस्ट को एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मतलब जब इसको एक कंडीशन मिलेगा कि हाँ अब बाहर के सिस्ट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं और अंदर के डॉटर सेल्स को बाहर रिलीज करते हैं, एट दैट टाइम द सिस्ट इज गोइंग टू break. So under favorable condition the cyst is going to break, and that process is called to be encytation. So encytation is a process जहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा और बहुत सारे डॉटर सेल्स जो है, जो सेल के अंदर हम लोग को दिखाई दे रहे, वो सब के सब बाहर रिलीज हो जाएगा, जैसे कि हम लोग को ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है. सो इफ आई कंपेयर बोथ द फिजन प्रोसेस, इन बाइनरी फिजन
at a time only two daughter cells are produced, and if I talk about multiple fission, at a time more than two daughter cells are produced. That's it for this. I hope this much is clear to you all. Now next we'll move on to the budding. Budding is the process in which we'll take example of yeast cell और hydra. अगर मैं yeast cell की बात करती हूँ तो ये एक सेल है जिसके ऊपर एक बड फॉर्म होगा. वो बड जो है वो पेरेंट सेल से ही अटैच्ड रहेगा तब तक जब तक वो बड कंप्लीटली मेच्योर नहीं हो जाता. व्हेन द बड is matured it is going to detach to the parent cell, यानी कि वो पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा. और जब वो पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा इट इज़ गोइंग टू डेवलप्ड एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मतलब जैसे मैं अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों में ये प्रोसेस पाया जाता है जिसके अंदर पेरेंट से जो बड है वो अटैच्ड रहेगा तब तक जब तक ये कंप्लीटली मेच्योर नहीं हो जाता. और जब ये मेच्योर हो जाएगा पेरेंट सेल से वो डिटैच हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोड्यूस होगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन फंजाई. आपने ब्रेड देखा होगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंगस ग्रो हो जाता है जब भी उसको मॉइस्चर लग जाता है. तो फंगस जो है वो बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन की वजह से ग्रो हो रहा है. अब ये होता कैसे वो देखते हैं. इफ़ यू कैन ऑब्जर्व दिस डायग्राम, द सर्कल लाइक जो इमेज आपको दिख रहा है दैट इज़ नथिंग बट स्पोरेंजियम. ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स है. When the spores are going to come in contact with the land, that is the spores are present inside the sporangium, and when the spores are going to come in contact with the land, every spore is going to grow as an individual or organism. So how the spores are going to release is by the favorable condition, like जब air जो है वो जब इसको burst करेगा, when the air is going to burst the cell or the sporangium, it is going to spread all the spore inside the sporangium, and those spores are going to come in contact with the land, and every spore is going to form as an new individual. तो जैसे आपको दिख रहा रहेगा माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये, मतलब आंखों से हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा. दिस आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, and when this type of cells are burst they are going to release many spore in the air, और जब ये एयर के थ्रू लैंड के कांटेक्ट में आएंगे तब ये एज एन इंडिविजुअल ग्रो होंगे. सो अंडर फेवरेबल कंडीशन दिस sporangium is going to burst, and when it is going to burst it is going to release a lot of spore which then are produced as a new organism. So I hope this much is clear, and we'll move on to the next part, that is regeneration and fragmentation. रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये लगभग सिमिलर है क्या. सो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. सो रीजनरेशन इज़ फाउंड इन हाइड्रा एंड प्लानेरिया. एज यू कैन ऑब्जर्व दिस पिक्चर कंटेन द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लानेरिया. और ये ऑर्गेनिज्म जो है इसमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि अगर ये अपना कोई भी बॉडी पार्ट लॉस्ट कर देता है, यानी कि इफ़ एनी बॉडी पार्ट इज़ लॉस्ट इट हैज़ द कैपेसिटी टू रीजनरेट दैट बॉडी पार्ट. यानी कि अगर मैं रीजनरेशन की बात करने जाऊँ तो ये प्लानेरिया जैसे हम लोग को दिख रहा है कि अलग अलग पोर्शन में कट हो चुका है और हर एक पोर्शन जो है वो फिर से रीजनरेट करने का कैपेसिटी रखता है. सो दैट इज़ नथिंग बट रीजनरेशन. एनी बॉडी पार्ट दैट इज़ लॉस्ट again that can be regenerated by this type of organism. If I talk about fragmentation, the examples are Spirogyra, and इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हम लोग को यहाँ पर स्पाइरोगायरा दिख रहा है, दिस नीड टू बी कट इनटू फ्रैगमेंट्स, एंड व्हेन दिस मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज कट इनटू पीसेस, तब क्या हो जाता है, हर एक पीस हैज़ द एबिलिटी टू ग्रो एज एन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. सो इफ़ आई कंपेयर बोथ द सिचुएशंस और बोथ द प्रोसेस, फ्रैगमेंटेशन इज developed with the help of breaking
ऑफ द बॉडी, तो होल बॉडी का ब्रेकेज होगा तभी हमें ये ऑर्गेनिज्म देखने मिलेगा, ग्रो करते हुए नजर आएगा. इन द सेंस वी नीड टू हैव एग्जैक्ट बॉडी पीसेस ऑफ द पेरेंट सेल सो दैट ईच बॉडी पीस इज गोइंग टू डेवलप्ड एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म. जबकि इसमें रीजेनरेशन में हमें सिर्फ बॉडी पार्ट जो लॉस्ट हुआ है उसी को रीजेनरेट करने का कैपेसिटी रीजेनरेशन में होता है. So I hope this much is clear, and the difference between these two is also clear. सो द नेक्स्ट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है उसमें कैसा होता है कि अदर देन एनी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि सीड्स बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं, दे आर ऑल कंसिडर टू बी द रिप्रोडक्टिव पार्ट. बट इफ़ आई टॉक अबाउट एनी अदर पार्ट अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैज़ द कैपेबिलिटी टू ग्रो एज एन प्लांट, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं. जैसे इफ़ आई एम यूजिंग लीव्स, if I am using stem, this kind of parts if I am using from an old plant, तब हमें एक न्यू प्लांट जब ग्रो होगा उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है लीव से जब कोई प्लांट ग्रो होगा, या जैसे यहाँ पर जिंजर दिया हुआ है, जब जिंजर के थ्रू अगर प्लांट ग्रो होगा, या फिर यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे कि स्टेम हो सकता है. Okay, so whenever other than reproductive part of the plant, any other old part is taken from the plant and then it is grown into a new plant is called to be the process of vegetative propagation. So let us study about artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation is done artificially and hence it is named as artificial vegetative propagation. So इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हम लोग को देखने मिलेंगे, यानी कि हम लोग कटिंग में कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या एयर लेयरिंग करते हैं. तो कटिंग में क्या होता है कि कोई भी एक पार्ट जो होता है प्लांट का, जैसे वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्टेम, सो द स्टेम इज कट फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ मॉइस्ट सॉइल, जहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा, जैसे हम लोग को यहाँ पर देखने मिल रहा है. सो द स्टेम इज कट फ्रॉम द प्रीवियस प्लांट एंड from that stem a new plant is growing to produce, that is nothing but cutting. लेयरिंग में क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि पहले से अगर सपोज ये एक प्लांट है, जब इसके जो स्टेम होते हैं जब वो लैंड से कनेक्टेड रहते हैं या लैंड के तरफ होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा सॉइल से कवर कर देते हैं. वी आर गोइंग टू कवर दिस स्टेम with the help of soil and this part is going to produce बाद में इसमें roots grow हो जाएंगे और उसके बाद ये independent plant में grow हो सकता है. So this is the layering part. If we talk about grafting, grafting में क्या होता है कि हम लोग दो डिफरेंट प्लांट में से स्टेम्स को कट करते हैं और उनको जॉइन कर देते हैं. सो अपर पार्ट इज कट इन अ स्लांट वे एंड द लोअर पार्ट इज ऑल्सो कट इन अ स्लांट वे एंड देन दोज स्टेम्स आर अटैच्ड, जिसको हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं, यानी कि हम लोग ने इसको ग्राफ्ट किया है, पूरा का पूरा कवर किया है, जैसे आपको ये पिक्चर में देखने मिल रहा होगा. सो वैसे हम लोग इसको कवर करते हैं और इसका रीज़न यही है कवर करने का, सो दैट वी कैन सी सम डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरिएशंस इन द प्लांट्स. सो अगर मैं एग्जांपल लूँ कि जो ऊपर वाला जो स्टेम है वो मैंने सपोज वाइट रोज़ में से लिया हुआ है और ये अगर रेड, तो हम लोग को एक कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, दैट विल बी प्रोडक्शन ऑफ न्यू पिंक फ्लावर्स, इसमें से प्रोडक्शन हम लोग को देखने मिल सकता है. सो द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज स्कायन एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड टू बी द स्टॉक. So this is important with respect to neat. If we talk about air layering is also similar to the grafting method, but also इसमें इतना ही डिफरेंट है कि जब हम लोग इसके ग्राफ्टिंग जब इधर कर रहे हैं तो वो नॉर्मल सॉइल में हम लोग इसको डालेंगे, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा है. इसमें क्या करेंगे हम लोग, इन द एयर ओनली वी आर गोइंग टू ग्राफ्ट द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेम एंड वी आर गोइंग टू ग्राफ्ट दैट विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक या किसी भी चीज़ से हम लोग उसको कवर कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द air layering. I hope this much is clear to all of you and this part is important with respect to NEET. इसके ऊपर बहुत सारे questions पूछे जाते हैं NEET से लेकर, so ये part अच्छे से करें for the preparation of NEET. So let us solve some questions from this topic.
So first question is artificial induction of roots on stems before it is separated from the parent plant for propagation is called. So इतना तो ये क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन से पूछा गया है, तो इसमें से जो आंसर है वो कौन सा हो सकता है। तो वो लोग ने क्या बोला है कि स्टेम को अभी तक प्लांट से पेरेंट से हम लोग ने अलग नहीं किया है, बिफोर इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो पेरेंट प्लांट से जब भी हम लोग सेपरेट नहीं कर रहे तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर लिख सकते हैं। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन द आंसर्स। फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कटिंग का। तो यहाँ पर बोला है बिफोर सेपरेटिंग, तो कटिंग तो हम लोग पहले ही सेपरेट कर देते हैं, तो ये आंसर तो गलत हो गया। सेकेंड हम लोग लेते हैं लेयरिंग। अगर हम लोग लेयरिंग की बात करें तो ये आंसर करेक्ट हो सकता है। इसका रीज़न क्या है कि जब भी एक प्लांट है उसके पार्ट जब ये पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है तभी हम लोग इसको लेयर करने वाले, तो बिफोर इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, तो हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर रहे। देन द नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसके बारे में तो हम लोग ने पढ़ा ही नहीं है। देन द नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में तो पेरेंट पार्ट जो है वो अलग अलग किए हैं और उसके बाद ज्वाइन किए गए हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अगर मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूँ प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो भी आर्टिफिशियली होता है, लेकिन प्लांट टिश्यू जो कल्चर जो होता है ना उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली इनसाइड द लैब वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ plants, so that is plant tissue culture. If we talk about the second question, the question is in bryophyllum vegetative propagation is by dash। ये तो बहुत easy है, तो इसके लिए आंसर होगा लीव्स। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि ब्रायोफाइलम जो है वो हमेशा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो लीव्स के थ्रू कर रहा है। So I hope you have solved this question by yourself. If not, then please try to solve as many questions as possible for the preparation of NEET. So ये चैप्टर में से आप कंसिडर कर सकते हो कि एक या दो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। So please go through this chapter. This chapter is again very important with respect to NEET. इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल इफ़ दिस चैप्टर इज़ ईजी ऑल्सो, सो अगर आप करके जाते हो तो एक या दो क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। Okay, so that's it for today. If you have any questions, you can ask on to this website, or you can drop a mail on this email address. So thank you.